6 properties. So up to 5 I think we are done. So now we are supposed to, I asked you to try the sixth one. Did you try that proof of the sixth one? Anybody? You can put your answer in the chat box. Yeah, I'm not telling you to solve. Did you try that? Did you see it after the lecture? Fifth one, I think I gave you the second part as homework. You want to the fifth one? You want to say this one? Okay. So you want me to complete this? Okay, then we'll do that. No issue. Yeah. So now let us go back and see what are the four theorem we proved. The first one is mod x is maximum of x comma minus x, and next mod of x is same as mod of minus x, and next mod x square is same as x square. Correct? And what is the next? Mod of xy, that is same as mod x mod y. And the fifth one is, this is what we want to prove. We want to prove mod of x plus y, that is less than equal to mod x plus mod y. Okay, we'll be using the fourth one for that. Yeah. So what is the fourth one? Mod of xy, that is less than equal to mod x mod y. Do you agree? This is the fourth one. Yes. Now let me, can I use it here at the place of mod of xy? Can I put it here? That is, this is something, x plus y the whole square, that is sorry, that is less than equal to है तो चलेगा. We can put that mod x square plus 2 times mod x mod y plus mod y square. Can I do that? Do you see something here? This look like some formula. Can you see what is that formula? Perfect, very nice. So this is mod x plus mod y the whole square. Do you agree, everyone? Taking the positive square root, you will get x plus y, that is less than mod x plus mod y. Do you agree? This is what you are supposed to prove. Correct? यहाँ पे less than equal to. What if both are zero then? This is, or what if both are one one लिया तभी भी then? Is that clear? Hence proved. Is the proof clear, everyone? We started with mod of x plus y the whole square, that is x plus y the whole square, x square plus 2xy plus y square. Perfect. But x square can be written as mod x the whole square. I think property second or third, this is the same. And same y square we can write it. Next, we know that any number that is always less than mod of that. So xy, can we write it, this is less than mod of xy. And in the next step, mod of xy, that is less than equal to mod x mod y. Correct? Yeah. Now what is the sixth one which you are supposed to prove? What is the sixth? What is the statement you want to prove? Mod of mod x minus mod y, that is less than equal to mod of x minus y. Yes, correct. यही प्रूफ करना है ना? हेलो. या सो मॉड ऑफ समथिंग, दैट मीन्स व्हाट, क्या प्रूफ करना है? इसी को थोड़ा मैं रिफ्रेम करता हूँ. दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ दिस टर्म, दैट इज mod of x minus mod y. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ. Comma minus of this, that is you can also write it mod y minus mod x. ये दोनों का maximum, that should be less than this guy. Do you agree? Check out the
सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट? मैक्सिमम का क्या था? फर्स्ट का सेकेंड था? फर्स्ट वन, at the place of mod x I am putting maximum of x comma minus x. Is that clear? At the place of this mod, mod के अंदर ये term है, do you see that? So it is maximum of x comma minus x. Minus x will be mod y first and that this guy. Is that clear? This is what I want to prove. So let us start. To prove. Okay. Now let us start. Consider this. Whatever 5 properties you have proved, you can use that properties. Consider mod x. Okay. Can I write like this? Mod of x minus y plus y. Can I see that? Y को add and subtract किया. Now can I use the previous property number 5, that is triangle inequality? What is property number 5? Can I write this guy as mod of x minus y plus mod y? Can I do that? This part मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ. Good. By property number 5. So can I now see that mod x minus mod y, that is less than equal to mod x minus y? Is that okay? Do you see first part हो गया अपना? इसमें ये मैक्सिमम में से एक बंदा जो है वो लेस देन आया. अगर मैंने बताया ये वाला भी लेस देन है तो दैट इज वी आर डन. करेक्ट. दिस इज मैक्सिमम ऑफ टू एलिमेंट. अगर दोनों एलिमेंट इज लेस देन दैट गाय देन वी आर डन एक्चुअली. दिस इज इक्वेशन वन. व्हाट नेक्स्ट? अभी अपने को क्या चाहिए? मॉड वाई में रिलेशन चाहिए. सो कैन आई क्विकली सी समथिंग लाइक दिस? मॉड वाई आई कैन राइट इट एज वाई माइनस एक्स प्लस एक्स. कैन आई सी दैट? This is less than equal to mod of y minus x plus mod x. Can I say this also? Yeah, yeah, perfect. Can I say this as mod of x minus y? Because you already know mod of x is same as mod y. Sorry, mod of x is same as minus of x. Can I use this property here? Perfect. What next? Mod y minus mod x, that is less than equal to x minus y. Is that clear? This is equation 2. From 1 and 2 combining, can you say something? That means what? एक सेट बनाया था maximum of this and maximum of this. Yeah. So both the term are less than x minus y. So can I say like this? Maximum of mod x minus mod y and mod y minus mod x. That is also less than that guy. जो भी है x minus y. But what do you mean by maximum of this? That means mod of mod x minus mod y, that is less than equal to x minus y. This is what we are supposed to prove. Hence proved. Is the proof clear everyone? वी आर सपोज टू प्रूव दिस. इसको मैंने मैक्सिमम में ब्रेक किया. मैक्सिमम ऑफ टू सेट ना, तो मैं क्या प्रूफ करूँगा? बोथ द एलिमेंट आर लेस देन दैट. सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट आई स्टार्टेड विद मॉड एक्स, जस्ट ऐड एंड सबट्रैक्ट किया एंड दैट्स इट. एक साइड लिया मॉड वाई को, इधर क्या लिया? मॉड वाई से स्टार्ट किया एंड वी इज द प्रॉपर्टी दैट दिस कैन बी रिटन एज दिस. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? गुड. ओके. Okay, so we have completed these 6 properties. So focus on that. We will be using all the time this thing. जो भी ये 6 properties दिए गए हैं, we will be using. And one more, I think I should write the 7th one as if mod x is less than k, then if and only if, like this, if and only if minus k is less than x is less than k. लीनियर इनइक्वालिटी में शायद देखा होगा तुम लोगों ने ये. इफ़ योर के इज़ पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव तो होना ही चाहिए बिकॉज मॉड एक्स से बड़ा है. ओके. इवन इफ़ यू वांट एक और मैं बढ़ा देता हूँ. एक्चुअली वो ज़रूरत नहीं है ये वाला पार्ट बिकॉज लेट मी मॉड एक्स अपन मॉड वाई.
ये फोर्थ से रिलेटेड है एट्थ वन, सो दैट इज इजी। सिक्स सेवेंथ वन मैं करता हूँ प्रूफ, ठीक है। लेट अस सी। सो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इफ एंड ओनली इफ? That means if you assume this, then you have to prove this, or if you assume this, then you have to prove this. Both the side you have to do. Do you agree? Let us start assuming this. Suppose mod x is less than k. But what do you know about mod x? That is a set maximum. Yeah, yeah, that is definitely positive. But that is maximum of x comma minus x. First property. Do you agree? What do you mean by this? Maximum is less than k. Can I say like this? X is less than k and minus x is also less than k. Can I say that? सेट में दोनों एलिमेंट है, दोनों लेस देन है, तो मतलब दोनों इंडिविजुअली भी लेस देन रहेंगे, लाइक दैट। इज दैट ओके? माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी चेंज होएगा क्या? दिस विल बिकम एक्स इज ग्रेटर देन माइनस के। नाउ लेट अस जस्ट कंबाइन बोथ द थिंग। यू आर डन एक्चुअली। ये क्या बोल रहा है? एक्स का वैल्यू इज लाइंग बिटवीन minus k to k. Do you agree? We have proved the first part. We started with this and we proved this. Is that clear, everyone? Okay, perfect. Can I quickly go back? Go back means what? This is what I proved. This implies this. This implies this. This implies this. This implies this. Can I say if this is true, then can I say the previous one? This line? Can I go back? Yes, because we are using definitions. So if I am here, so can I go back again? That is x लेस देन की है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट? एंड कैन आई गो बैक अगेन? दैट इज इफ x इज लेस देन k, माइनस एक्स इज ऑल्सो लेस देन k, तो मैक्सिमम विल बी लेस देन k. दैट इज ऑल्सो ट्रू. दैट मीन्स वॉट मॉड एक्स इज लेस देन k. मतलब दोनों ये क्या है, डायरेक्टली एक ही प्रूफ में दोनों हो गया, बिकॉज ये कंडीशन क्या था, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन का था कंडीशन. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके. व्हाट वाज द एट्थ वन? क्या बोला था मैंने? मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई. द कंडीशन इज वाई मस्ट नॉट बी जीरो, क्योंकि जीरो होगा तो प्रॉब्लम होएगा, ठीक है. कैन समबडी टेल मी हाउ टू प्रूव? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू हिंट. यूज द फोर्थ वन. यूज द फोर्थ प्रॉपर्टी. कैन आई राइट दिस डिवीजन एज मल्टीप्लीकेशन? कैन आई राइट इट एज x into y inverse? Can I say that? एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग ने प्रूफ किया है, दिस इज सेम एज मॉड एक्स इंटू मॉड वाई इनवर्स. डू यू एग्री? मल्टीप्लिकेशन का फोर्थ हो गया ना. एंड मॉड का भी प्रूफ किया है ये. अगर मॉड हम लोग वन, दिस इज समथिंग लाइक, सॉरी, दिस इज समथिंग लाइक वन अपॉन मॉड वाई, दैट इज सेम एज मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई. डन. डू सी कुछ डिफिकल्टी थी क्या? मल्टीप्लिकेशन को जस्ट, डिवीजन को वी रोट इट एज मल्टीप्लिकेशन एंड वी यूज द प्रॉपर्टी. इज दैट ओके? गुड. हाँ. हाँ बोल, बोलना बोलना. फिफ्थ वाले में
ओके बोलो। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ले सकते हो, कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बट एक्चुअली मैंने क्या सोचा ना, जो अभी जस्ट फिफ्थ प्रूफ किया मैंने, उसका यूज़ करने का ट्राई किया तो थोड़ा मेरा काम इजी हो गया। डू यू सी, जस्ट दो थिंग में मेरा मतलब 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर, वी आर डन। केसेस लेके भी किया तभी भी दैट्स ओके, वो भी चलेगा। केस वन, इफ़ बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, वैसे लिया तभी भी चलेगा। ठीक है, अगर तूने सॉल्व किया है केसेस लेके जस्ट मेरे को सेंड करना, बाद में मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। या दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, नो इशू। ओके, नाउ वी नीड टू, तुम लोग ने 12th स्टैंडर्ड का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट चैप्टर क्या था, वो नाम क्या था चैप्टर का? आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम था शायद। डू यू रिमेम्बर? या सो उसमें भी कुछ ऐसा ही था जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं ना। अभी देखो वी आर इन द स्टेट कि अभी अपने को क्या पता चल गया है, नंबर सिस्टम पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब भी पता है, एंड मॉड्यूलस के बारे में भी पता है। परफेक्ट, अभी ये 3 चीज़ें पता है अपने को ना। इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज़ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर। सी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग हमेशा यूज़ करते रहेंगे, satisfying the following: inequality or equality. Okay, so let us solve the first one. Suppose the first question is given 2x, sorry, that is 2x minus 3 is less than 5. So suppose this is my first question. Which property should I use? Yes, which property? Property number I think 7 or 8, no 7 something. क्या था property number 7? Do you see ऊपर ही लिखा है मैंने, सेवेंथ वन। इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू हो या लेस देन हो तभी भी चलेगा। सॉरी, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे भी ऐसा। सो कैन आई यूज एट हियर, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन, सो कैन आई से दिस -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x minus 3 that is less than equal to 5. Do you agree everyone? What next? अभी क्या करूँ मैं? -3 नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या करूँ मैं? एडिंग 3 इन ऑल द टर्म। फर्स्ट टर्म में 3 ऐड किया तो दिस विल बी 3 minus 5। नेक्स्ट टर्म में ऐड किया तो दिस विल बिकम जस्ट 2x, एंड नेक्स्ट टर्म में ऐड किया तो 5 plus 3। करेक्ट? व्हाट इज दिस? 3 minus 5 क्या होता है? -2 दैट इज लेस देन इक्वल टू 2x दैट इज लेस देन इक्वल टू 8। नाउ व्हाट कैन आई डिवाइड बाई 2? सो क्या आएगा? -1 दैट इज लेस देन इक्वल टू x दैट इज लेस देन इक्वल टू t। आई डिड अ मिस्टेक, डू यू सी दैट? क्वेश्चन में कहीं पे ऊपर लेस देन इक्वल टू थोड़ी था वो, सो यहाँ पे भी कहीं पे भी लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा ना। नहीं, यू शुड focus on this thing, these are very important. Okay, so what is this is less than 4, so this is your final answer. Do you agree? Yeah, nice. So this is your final answer, and x, what is the value of x? Let me quickly give you one more question and you try this question. Okay, that is mod of 3x minus 4 that is same as mod of 7x plus 2. Can you solve this? Get the value of x. Which property will you use? सिर्फ पहली बात तो अपने को मॉड से बाहर निकलना है अपने को, करेक्ट? मॉड नहीं चाहिए अपने को।
विच प्रॉपर्टी जो ऐसा मॉड ब्रेक करता हो, ऐसा कुछ. लेट अस सी द प्रॉपर्टीज. डू यू सी ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है इसमें से जो मतलब परफेक्ट. डू यू सी थर्ड वन. वेरी नाइस. थर्ड वन क्या करता है, अगर मॉड का स्क्वायर लिया दैट इज सेम एज स्क्वायर, सो कैन आई डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो. दिस इज ट्रू ओनली इफ देर इज इक्वालिटी. हाँ, correct. If there is inequality then you cannot square and do something like that. That is not acceptable there. So squaring किया तो ये क्या आएगा, mod of 3x minus 4 the whole square, that is equal to mod of 7x plus 2, that is whole square. Correct. So this is same as 3x minus 4 the whole square, and this is same as 7x minus 2 the whole square. Is that clear? Now can you do that this part? You have to just solve the equation and get the value of x. It will be a quadratic equation and you have to find the value of x. दो values आएंगे, quadratic है तो दो values आएंगे. Can you do that? Yeah, good. Do you see हम लोग ने property ही use किया, अभी तो कुछ भी नया नहीं use किया. Okay, let me do the next one. एक और question करता हूँ इसी में का. Suppose if you are given mod पे ही करता हूँ. If you are given mod of x square plus 5 that is equal to 6x minus 3, क्या करूँ? What should I do? Anyone? Any idea? हाँ, स्क्वायरिंग कर सकते हैं एवरीवन. सिंस इक्वालिटी है तो वी कैन डू दैट ना. करेक्ट. बट डू यू सी स्क्वायरिंग थोड़ा मतलब हेल्पफुल रहेगा क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम रहेगा. देखो, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल आ जाएगा तुम्हारे पास. समझ रहा है. स्क्वायरिंग इज एक्सेप्टेबल, मतलब कर सकते हैं. सी स्क्वायर किया तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिस इज होल स्क्वायर एंड दिस इज 6x - 3 द होल स्क्वायर. डू यू सी तुमको डिग्री 4 का पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या इधर कहीं पे. सो वो सॉल्व करना पड़ेगा. करेक्ट. सो इन दैट केस क्या कर सकते हो तुम लोग. आई गिव यू वन मोर टेक्निक. सी ये केस में बस एक ही टर्म को मॉड था. ठीक है. एंड यू ऑलरेडी नो मॉड का वैल्यू क्या आता है. आइदर इट इज, या आइदर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. मैं कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ एक्स पे, जस्ट ऐसा. आइदर इट इज दिस और दिस. डू यू एग्री. यही दोनों में से एक आएगा ये मॉड का वैल्यू. करेक्ट. सो आई विल डू वन थिंग, आई विल पुट केस वन. केस वन में सपोज आई एम पुटिंग दिस गाय एज, ये मॉड का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 में पुट कर रहा हूँ. सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6x - 3. इधर से क्वाड्रेटिक है. एंड केस टू आई विल पुट, ये मॉड की जगह पे मैं नेगेटिव वैल्यूज डालूंगा. दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6x - 3. डू यू एग्री. इधर से भी क्वाड्रेटिक है, इधर से भी क्वाड्रेटिक है. इधर से दो वैल्यूज़ मिलेंगे, इधर से दो वैल्यूज़ मिलेंगे. क्या आएगा यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये क्या आएगा प्लस 8 इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस और ये 5 - 3 प्लस 2x इक्वल टू 0. करेक्ट. यू विल गेट टू वैल्यूज़ फ्रॉम हियर, टू वैल्यूज़ फ्रॉम हियर. यहाँ से क्या आएगा 8 ना तो 4 एंड 2, सो इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2. यहाँ पे 6 आना चाहिए एडिशन 2, सो इट विल बी, इसका तो आई थिंक फॉर्मूला मेथड से जाना पड़ेगा. दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस दैट इज 36 माइनस 8 अपॉन 2. सो दिस इज, इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो और कर सकते हो. 36 माइनस 8 दैट इज 28 ना. ये 28 you can
7 into 4, so you can take 2 outside, so your final value x will be minus 3 plus minus root 7. Do you agree? जस्ट मैंने कैलकुलेशन क्विकली किया सो दैट अपना टाइम थोड़ा सा बचे. Is that okay? So what is the answer? You are having 4 values of x, correct? What are they? See, even starting में मैंने बात किया था कि अगर मैंने डायरेक्ट स्क्वायर किया तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल आएगा, एंड इफ द पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 4 देन इट हैज़ 4 रूट्स. You know what is the meaning of root? That means a number which satisfy that equation. अगर डिग्री 3 है तो it will have 3 roots. डिग्री 2 है तो it will have 2 roots. So in the earlier के starting में ही बोला था कि इसके 4 roots आएंगे. Is that clear, everyone? Now can you do this type of question? सिंपल लग रहा है क्या, पहले वो बताओ मुझे. हाँ अभी ठीक है, अभी झटका देता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन दे के. लेट अस सी. बट लेट मी जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन, देन कुछ होमवर्क देता हूँ तुम लोग के लिए. यू जस्ट ट्राई दैट. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. शो दैट, ये कराना इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसका यूज़ अभी नहीं आएगा बट इट विल बी यूज इन लेटर ऑन एस वाई एंड टी वाई में इसका यूज़ होएगा, तो इट्स बेटर कि अपने को प्रूफ पता रहना चाहिए. वहाँ पर भी हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट इफ़ यू नो ऑलरेडी देन इट विल बी ईजियर टू से. ओके, ए एंड बी आर रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, इज़ द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस सी. डिनोमिनेटर देखो पहले. 1 1 1, ए प्लस बी, ए बी, करेक्ट. 1 तो मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कुछ तो कर सकता हूँ, 1 का इज़ नॉट एन इशू, करेक्ट. डू यू हैव एनी रिलेशन विथ ए प्लस बी एंड बी? Triangle inequality, that is fifth property. Mod of a plus b, we can write it as less than mod a plus mod b. Can I do that? This is called triangle inequality. Can I use that fifth property? Yes. And if I, yeah, okay, good. So 1 upon e plus b. अगर इसको मैंने 1 upon में किया तो क्या आएगा? Inequality change होएगा. Do you agree? Now let me add 1 both the side. Now you will see मैं add 1 को add क्यों कर रहा हूँ? Plus 1, and here also 1 plus +1 उधर ही लिखता हूँ दोनों साइड. वाई टू चेंज द फॉर्मेट. mod a plus mod b +1, करेक्ट. +1 क्या, नाउ कैन आई डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट विल बी द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर विल बी 1 plus mod a plus b. दिख रहा है, इन द क्वेश्चन ऑल्सो ऐसा ही कुछ था. एंड यहाँ पे क्या आएगा? 1 plus mod a plus mod b डिवाइड बाय mod a plus mod b. डू यू एग्री? नाउ कैन आई अगेन फ्लिप कर सकता हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज होएगा. कैन आई डू दैट? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये नीचे चाहिए, दिख रहा है. सो दिस विल बी लेस देन mod a plus mod b. सी ईच स्टेप मैं कर क्या रहा हूँ, जो भी मेरे को प्रूफ में चाहिए वो देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. सो अभी इतना आगे हम लोग. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, तुमको दिख रहा है ना. अभी प्रूफ क्या करना है? दिस पार्ट दैट इज लेस देन दिस गाय. ओके, तो कैन आई सेपरेट दिस, ये मॉड अपॉन ये टर्म. हाँ, डिनोमिनेटर सेपरेट, गुड. सो दैट इज मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस सी. ये सब कुछ नहीं है, जस्ट फॉलो होता है डायरेक्ट. दैट इज मॉड ए अपॉन
1 plus mod a plus mod b plus this is mod b upon 1 plus mod a plus mod b. अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है अपना. यू सी नीचे अपने को ऊपर का ये टर्म मिल गया, ये टर्म मिल गया, बट डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग 1 प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी भी है. मतलब समझ रहा है क्या करना पड़ेगा तुमको. दिस पार्ट इज लेस देन मॉड ए प्लस 1 अपॉन ये पार्ट, 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ए टाइप, ऐसा कुछ. कैन आई डू दैट? दैट इज क्वाइट इजी. हाउ? You already know that 1 plus mod a that is less than equal to 1 plus mod a plus mod b. Do you agree? 1 plus mod a में कुछ और ऐड कर रहा हो तो that is always greater than. So if I just change the inequality, that is 1 upon में लिया तो 1 upon 1 plus mod a that is less than equal to 1 upon 1 plus mod a plus mod b. Is that okay? Perfect. Now if you don't want to write it, I write it like this. That is 1 plus mod a plus mod b